Lesson 8, Comparing Quantities. In Comparing Quantities chapter, we have seen what is percentage, what is ratio, what is profit, what is loss, what is tax, what is discount. It is one of the most practical chapters, and today we will do the last part of this chapter, which is called compound interest, and also revise simple interest, which is the last topic of this chapter. Simple interest, compound interest क्या है? तो पहले we will try to understand what is interest. Who gives interest? Bank give interest to whom? To depositor. What does depositor give the bank? Depositor gives principal. It's given to the bank. What is principal? Principal is your money. And interest is what you get as a benefit. But have you ever thought, why should bank give you interest? Why should you earn more money than what you deposited? उसका एक रीज़न ऐसा है that this is you who has 1,000 rupees and you are very happy because you have 1,000 rupees. With 1,000 rupees you can eat ice cream every day, you can have chocolates every day, you can watch movies, you can buy books, you can buy shoes. Basically, you are happy because you have 1,000 rupees which you can spend. But if you give this 1,000 rupees to the bank, who is happy now? The bank is happy. Why is the bank happy? Because bank has 1,000 rupees. Is bank going to watch movies, chocolate, ice cream, shoes and books? No. Bank is going to give that money to needy people. So bank will give the money to an auto rickshaw driver so that he can buy his auto rickshaw. So auto rickshaw driver is happy because he got money to buy his rickshaw. Now auto rickshaw driver has received 1,000 from the bank, but when he gives back the money, he is not going to pay 1,000,
he is going to pay more, say 1100 rupees. 1000 गया, 1100 आया, तो 100 रुपीज़ प्रॉफिट कमाया बैंक ने। रिक्शा वाले को टाइम पे पैसा मिल गया, उसकी रिक्शा आ गई, लोन का रीपेमेंट हो गया, लोन पे एक्स्ट्रा पैसा कमाया, बैंक खुश। बट यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो? तुमने किया है सैक्रिफाइस। यू सैक्रिफाइस्ड योर आइसक्रीम, योर चॉकलेट, your movies, your books, your shoes, your happiness. And when you sacrifice all this and give the money to the bank, वो sacrifice के बदले में तुमको कुछ मिलना चाहिए. That's why interest is paid by the bank. That's why interest creation. Interest का concept is based on sacrifice. So you sacrificed your money, your happiness, therefore you get interest which is extra money. और वो इंटरेस्ट बैंक देने के लिए पैसा कहाँ से आता है वो मैंने समझा दिया कि बैंक सामने लोन देती है और लोन वाला उसको एक्स्ट्रा पैसे देता है क्योंकि उसको लोन मिला है, उसको बेनिफिट हुआ है. सो दिस इज एवरीबडीज प्रॉफिट, नोबडीज लॉस. रिक्शा वाले की बात बन गई, उसकी रिक्शा खरीद ली, बैंक वाले को प्रॉफिट मिला और तुमको इंटरेस्ट मिला. Now, in this chapter, it will mainly be you versus bank. मतलब डिपॉजिटर और बैंक, और इट विल बी बैंक वर्सेस लोनी. लोनी मतलब जो लोन ले रहा है. बात एग्जैक्ट सेम होती है, किसी ना किसी को इंटरेस्ट भरना है, किसी ना किसी को इंटरेस्ट रिसीव करना है. द इंटरेस्ट इज पेड बाय द लोनी टू द बैंक, एंड इफ यू आर फिक्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट इज पेड बाय द बैंक टू यू. बात एक ही है, सम सेम होते हैं, फॉर्मूला सेम है, बट रियल लाइफ सिनेरियो अलग है. दिस इज कॉल्ड फिक्स डिपॉजिट, दिस इज कॉल्ड लोन. दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, लोन का जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज़्यादा होता है फिक्स डिपॉजिट के रेट ऑफ इंटरेस्ट से. तो तुम पैसे दे के इंटरेस्ट लोगे तो 4% मिलेगा, बट तुम लोन लोगे तो 5% देना पड़ेगा. याद रखना, दिस इज बेसिक रूल ऑफ बिजनेस. ओके, so we have understood why you get interest, who is a depositor, who deposits money. Depositor deposits money in the bank and the bank pays interest to the deposit. उसका उल्टा चक्कर, बैंक gives loan to the loanee and loanee pays interest to the bank. कोई भी फर्क नहीं पड़ता, दोनों केस सेम है, इसलिए हम उस पर ध्यान नहीं देंगे. समझ लो कि देयर इज 1000 रुपीज विच हैज बीन डिपॉजिटेड, उस पे 5% इंटरेस्ट है. तो 1000 रुपए का फिक्स डिपॉजिट करो, 5% इंटरेस्ट इज पर एनम. पर एनम मतलब हर साल. तो 5% ऑफ 1000 कितना होता है, ये हमने पहले के चैप्टर में सीखा, पहले के पार्ट में. तो 5% ऑफ 1000 50 रुपीज़ होता है. तो 2001 में 1000 रुपया दिया, तो 2001 के एंड में या 2002 के स्टार्टिंग में 50 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा. 2003 50 रुपया, 2004 50 रुपया, 2005 50 रुपया. 2005 में तुमको पैसे वापस चाहिए, यू विल गेट 1000 रुपीज बैक प्लस 50 50 50 50 1200 रुपीज.
ध्यान से सुनना। सैक्रिफाइस क्या किया तुमने? 2001 में तुमने 1000 रुपए सैक्रिफाइस किए, जिसका तुम्हें इंटरेस्ट मिला 50 रुपीज इन 2002। 1000 रुपये बैंक के पास है, एक और साल चला गया और 50 रुपये मिले, एक और साल चला गया और 50 रुपये मिले, एक और साल चला गया और 50 रुपये मिले। दिस इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। बट यू थिंक कि 50 रुपये से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 50 रुपीज, दिस डज नॉट मेक एनी डिफरेंस इन माई लाइफ कि मेरे पास हो के ना हो, बैंक दे के ना दे, छोटा सा अमाउंट है। तो तुमने बैंक को बोला कि 2002 में 50 रुपये मुझे नहीं चाहिए, प्रिंसिपल में ऐड कर दो, विच मीन्स यू सैक्रिफाइस्ड दिस 50। तो हर साल 1000 रुपीज पे 50-50 मिलता था, लेकिन अगर तुम पहले साल के 50 रुपये लेने से मना कर दो तो सिनेरियो विल चेंज। 2001 में 1000 रुपीज का डिपॉजिट किया, 2002 में 1000 तो है, बट तुमने 50 और सैक्रिफाइस किया तो 1050 हो गया। जब 5% कैलकुलेट होता है तो 5% ऑन 1000 रुपीज और 5% ऑन 1050, दिस इज मोर। तो नेक्स्ट ईयर 2003 में तुमको थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि तुमने 50 रुपये और सैक्रिफाइस किए, एंड देयरफॉर यू गेट लिटल मोर इंटरेस्ट। 50 से ज़्यादा मिलेगा। कितना मिलेगा? 52.5 मिलेगा। तो 1050 बैंक के पास है ही, 52.5 रुपया मिला, मतलब 1102.5 हो गया अब तुम्हारा पैसा 2003 में। जबकि यहाँ पे देखो 2001, 2002, 2003 सिर्फ 1100 होता है। 2001, 2002, 2003 1100, बट यहाँ पे 11,2.5। 2.5 रुपये ज़्यादा क्यों मिले? क्योंकि तुमने 50 रुपये एक्स्ट्रा सैक्रिफाइस किए। नाउ दिस स्टाइल ऑफ गेटिंग मोर by sacrificing more is called compound interest. I am trying to once again explain simple and compound interest in a slightly different manner. Principal amount, इतना। ये फर्स्ट ईयर है। तो पहले साल तुमने कुछ तो प्रिंसिपल अमाउंट डिपॉजिट किया, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें साल में सिनेरियो क्या होगा? Your principal will remain same with the bank, and you will keep getting interest of a fixed amount on that same principal. But compound interest में तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट तो सेम है, बट जब इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा
you are definitely going to earn more in compound interest. Let's take an example with numbers. 1,000 रुपए का बैंक, 1,000 नहीं, 1 लाख, 1 lakh rupees was given to the bank. So bank has 1 lakh और 1 साल के बाद 10,000 interest, which is called 10%. तो बैंक इज प्रोमिसिंग 10% और ये है 10% सिंपल इंटरेस्ट का एग्जाम्पल. सेकेंड ईयर 1,10,000, ये 10,000 तुम घर लेके जा सकते हो. 1,10,000, 1,10,000, 1,10,000, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख. बैंक के पास क्या है? तुम्हारा सिर्फ 1 लाख है और 1 लाख के सैक्रिफाइस पे 10,000 मिलते हैं जो तुम 4 बार घर ले जा चुके हो. तो 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 तुमको 4 बार मिला. तो अगर आप बैंक को बोल दो कि बस हो गया, मुझे मेरे पूरे पैसे वापस कर दो, तो 1 लाख प्लस 40,000, 1,40,000 इज योर ओवरऑल टोटल. बट if you compare the same scenario with compound interest, तो compound interest का 1 लाख वो तो रहेगा बैंक के पास, बट इस 1 लाख पे 10% इंटरेस्ट मिला 10,000. ये तुम घर लेके नहीं जा रहे, ये टेक होम है, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में देयर इज नो टेक होम. घर लेके पैसे नहीं जा सकते. तो नेक्स्ट ईयर बैंक के पास 1,10,000 है, तुम्हारा सैक्रिफाइस बढ़ गया है. 1 लाख ओरिजिनल, ये 10,000 ओरिजिनल और 10,000 पे थोड़ा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा 1,000. फिर नेक्स्ट ईयर ये पूरा अमाउंट बैंक के पास है, तो एक्स्ट्रा के ऊपर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, and therefore your grand total is different. सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का ग्रैंड टोटल अलग होता है. कंपाउंड इंटरेस्ट में यू अर्न हायर. Anyways, enough of explanation. Let us now focus on the 4 types of sums of compound interest. पहले take out your notebook and now start writing simple interest formula is equal to P R N upon 100. कोने में लिखो P is equal to principal, R is equal to rate of interest, N is equal to number of years. Compound interest formula, A is equal to P multiplied by 1 plus R upon 100 raised to N. PRN ये रहा PRN. बट A क्या है? अमाउंट. और अमाउंट के अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड, अंदर आ गया. मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करना पड़ेगा. कॉपी दिस मच वर्ड टू वर्ड एंड हाईलाइट द 3 formulas. The formula of simple interest is PRN upon 100, amount and compound interest.
सिंपल इंटरेस्ट के सम्स नहीं पूछेंगे बिकॉज वो 7th स्टैंडर्ड में था, 8th में कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब लिखो टाइप्स ऑफ सम्स। ओके, लिखो टाइप्स ऑफ सम्स। देर आर 4 मेन टाइप्स, actually 2 main types. Annual compounding, biannual compounding, सेमी एनुअल कंपाउंडिंग। दोनों का मतलब सेम होता है। हाफ ईयरली कंपाउंडिंग, तो बहुत सारे नाम है, बाई एनुअल, सेमी एनुअल, हाफ ईयरली और 6 मंथली। कंपाउंडिंग, 2 टाइप्स ऑफ सम्स लिखो। और ये दोनों टाइप में देर आर 2 टाइप्स। n belongs to natural number, n belongs to fraction। थोड़ी देर में सब समझाऊंगा, पहले लिख लो n belongs to। ये belongs to का साइन है, belongs to मतलब कुशान belongs to the Hindu community, John belongs to United States of America, Krishna belongs to the family of gods, ऐसा कुछ। तो n क्या है हमने पहले ही देखा, n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल तक तुमने फिक्स डिपॉजिट ली है या कितने साल तक लोन लिया है। तो वो जो साल है वो 2 साल, 3 साल, लिखते जाओ, 4 साल हो सकता है, बट 2.5 ईयर्स, 3.5 ईयर्स, 4.5 ईयर्स है तो वो फ्रैक्शन। तो n कैन बी नेचुरल और n कैन बी फ्रैक्शन। अगर वो नेचुरल है तो वो इजी सम है, बट फ्रैक्शन है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इतना कॉपी करो। मतलब जो 4 टाइप के सम्स है, दैट डिपेंड्स ऑन एनुअल, सेमी एनुअल एंड नेचुरल, नॉन नेचुरल। एनुअल कंपाउंडिंग, सेमी एनुअल कंपाउंडिंग, एनुअल कंपाउंडिंग, सेमी एनुअल कंपाउंडिंग, एनुअल में नेचुरल, सेमी एनुअल में नेचुरल, एनुअल में फ्रैक्शन, सेमी एनुअल में फ्रैक्शन। ये 4 डब्बों पे ध्यान देना है तो ये चैप्टर के सारे सम्स आएंगे। लिखो ये 4 डब्बे, क्योंकि मैं ABCD करके सिखाने वाला हूं ये टॉपिक। एनुअल, N नेचुरल, ये A इजी, B सेमी एनुअल, N इज नेचुरल, ये इजी, C एनुअल, N इज फ्रैक्शन, इसके नीचे लिखो मीडियम, और D सेमी एनुअल फ्रैक्शन, टफ। This is where we start doing the sums now. लिखो
ए एनुअल कंपाउंडिंग प्लस एन इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। बट आगे लिखने से पहले एक चीज समझो, डू नॉट कॉपी, जस्ट लिसन। एनुअल और सेमी एनुअल कंपाउंडिंग क्या होता है? जब तुम जनवरी में एक फिक्स डिपॉजिट करते हो 1000 रुपीज की, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर ईयर। तो बैंक क्या करता है, एक साल बाद इंटरेस्ट ऐड करता है। तो जनवरी 2001 को पूरा एक साल हो जाने के बाद जनवरी 2002 आता है, तब 1000 में 10% इंटरेस्ट ऐड करके 1100 बना देती है, साल में एक बार। बट 10% सेमी एनुअल है, 10% सेमी एनुअल मतलब 10% पर ईयर, 10% साल का, वो तो सेम है। बट जनवरी 2001 में 1000 रुपये रखे तो 6 मंथ्स के बाद 6 महीने का इंटरेस्ट ऐड कर देती है। 6 महीना मतलब जून 2001 में 50 रुपये ऐड हो जाएंगे, 6 महीने बाद ऐड कर दिया। और 6 महीने बाद 1050 हो गया, तो और 6 महीने बाद जब और 5% ऐड करेंगे तो तुम्हारा टोटल हो जाएगा 1102.5। ये हो गया दूसरे जन 2002 में। ट्राई टू फील द डिफरेंस। साल में एक बार इंटरेस्ट ऐड करोगे तो 1000 का 1100, 10%। बट वही 10% 5% करके 6 महीने में ऐड करोगे, दिस इज कॉल्ड 6 मंथली कंपाउंडिंग। द रिजल्ट इज 1102.5, ₹2.5 का फायदा। सो 6 मंथली कंपाउंडिंग इज बेटर देन एनुअल कंपाउंडिंग। कुछ बैंक एनुअल करती है, कुछ बैंक सेमी एनुअल करती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एनुअल एंड सेमी एनुअल कंपाउंडिंग। जब तुम फिक्स डिपॉजिट रखते हो तो रोज इंटरेस्ट मांगने जाते हो, आज का इंटरेस्ट दो, आज का इंटरेस्ट दो, नहीं। हर महीने जाते हो, जनवरी का इंटरेस्ट दो, फरवरी का इंटरेस्ट दो, नहीं। साल में एक बार होता है एंड दैट्स कॉल्ड एनुअल इंटरेस्ट। लेकिन सेमी एनुअल मतलब 6 महीने पे इंटरेस्ट ऐड करती है। तुमको मिले ना मिले दैट्स अ डिफरेंट थिंग, कैलकुलेट होके तुम्हारे आउटस्टैंडिंग अमाउंट में ऐड हो जाता है। इसी तरह से मंथली कंपाउंडिंग भी हो सकता है, और मंथली कंपाउंडिंग में हर महीने 1% ऐड होगा, या 2% और वॉटेवर। उसमें तो और भी बड़ा फायदा है, लेकिन मंथली कंपाउंडिंग कोई नहीं करता। चलो, अब तक की राम कहानी समझ में आए कि ना आए? क्लास खुलने के बाद आई विल रिवाइज दिस चैप्टर अगेन, एक्सप्लेन यू एवरीथिंग अगेन। बट आज की तारीख में सम सॉल्व करना आना ही चाहिए, नो एक्सक्यूजेस। सो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो मैं वापस समझाऊंगा, बट क्लास खुलने पे अगर मैंने ए कैटेगरी का एक सम दिया और नहीं आया तो डंडे पड़ेंगे। सो लिखो कैटेगरी ए एनुअल कंपाउंडिंग एंड एन इज नेचुरल नंबर। Sum number 1, you do not have to copy the question.
Raju puts a fixed deposit at annual compound interest for 50,000 rupees, 10%, 2 years. What you have to write down is this. P मतलब प्रिंसिपल 50,000 रुपीज. R रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%. N नंबर ऑफ ईयर्स 2 years. और हमें पूछा है कि उसको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा. कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते, पहले ए फाइंड करना है, अमाउंट कि 2 साल 50,000 दिए, 2 साल बाद कितने मिलेंगे, दैट इज द अमाउंट, टोटल अमाउंट विच यू गेट बैक. P ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू n. ये फॉर्मूला बाय हार्ट कर लो. प्रिंसिपल 50,000 ब्रैकेट 1 प्लस R 10 अपॉन 100 रेज टू 2. 50,000 तो बाहर ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय. अब यहां पे इसको कट मत करो, हर एक टीचर की एक स्टाइल होती है. मेरी स्टाइल ऐसी है दैट डोंट कैंसल दिस 0 0. यू कैन बट डोंट डू दैट. एलसीएम ले लो. 100 1 जा 100 प्लस 10 रेज टू 2. 6 महीने पहले जब 8th स्टैंडर्ड के क्लासेस शुरू किए थे तो एलसीएम के 3 लेक्चर लिए थे. और एलसीएम नहीं आएगा तो डंडे नहीं पड़ेंगे, तुमको मैं इंस्टीट्यूट से निकाल दूंगा. सो व्हाट डिड आई डू, 1 प्लस 10 बाय 100 का एलसीएम लेके 110 अपॉन 100 कर दिया. 50,000 वहीं का वही है, स्क्वायर वहीं का वही है. अब स्क्वायर का मतलब है मल्टीप्लाइंग 2 टाइम्स, मतलब 110 अपॉन 100 into 110 upon 100. Now the zeros will get cancelled. 1 2 3 4, 1 2 3 4. तो बचा 5 1 1 0 1 1 0. 11 11 जा 121 और 2 zeros into 5. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5. गलत है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5. हाँ 605 और 2 zeros. खत्म. नो नीड फॉर रफ वर्क. अमाउंट इज 60,500. तो 50,000 दिया था, 2 साल बाद 60,500 मिलेंगे. कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. 60,500 में से 50,000 तो मेरे खुद के पैसे थे भाई, बैंक ने एक्स्ट्रा कितना दिया. फाइनल आंसर कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न्ड इज 10,500. दैट्स द फर्स्ट सम. कॉपी इट, अंडरस्टैंड इट, शांति से देखो. This is the first category of sum. Second, no need to copy the question. Question तो सिर्फ एक स्टोरी होता है.
Annual compounding by HDFC Bank at the rate of 8% per year gives how much if the FD is kept for 2 years for rupees 80,000. तुमको सिर्फ चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है. लिखो PRN. प्रिंसिपल मतलब कितना पैसा, 80,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%. नंबर पीरियड 2 साल. और मेन वर्ड एनुअल कंपाउंडिंग. तो ये हो गया एनुअल एंड एन इज नेचुरल नंबर वाला सम. कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं. अमाउंट इज इक्वल टू P 1 plus R upon 100 raised to n. Write the formula. Principal 80,000. Rate of interest 8. 2 साल. $80,000. 1 plus 8 upon 100 में LCM लोगे तो 100 1 जा 100 plus 8 raised to 2 means 108 upon 100 raised to 2 means 108 upon 100 108 upon 100. Zero 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 cut. 8 into 108 into 108. 8 into 100 and 108. कितना टाइम लगता है देखो. हाउ टू मल्टीप्लाई. 8 8 जा 64. 8 0 जा 0 प्लस 6. 8 1 जा 8. 1 0. 0 8 जा 0. 0 0 जा 0. 0 1 जा 0. फिर 2 0. 1 8 जा 8. 1 0 जा 0. 1 1 जा 1. 4 6 6 1 1 1 1 6 6 4. Instead of doing this, I'll teach you a shortcut. अगर तुमको इंटरेस्ट है तो शॉर्टकट समझो. 108 इंटू 108. पीछे का नंबर 8. ये 08. 2 डिजिट लेने के. 08 मतलब 8. 1 डबल स्क्वायर. 1 डबल स्क्वायर मतलब 1. 8 का डबल 16. 8 का स्क्वायर 64. 11664. रफ में करो. 109 इंटू 109. पॉज द वीडियो एंड डू इट योर सेल्फ. वन 1881. बट मैं कहता हूँ शॉर्टकट यूज़ करो यार. 109 इंटू 109 का शॉर्टकट कैसे है. लास्ट 2 डिजिट उठाओ. 9. 1 डबल स्क्वायर. 1 9 का डबल 18. 9 का स्क्वायर 81. 11881. लास्ट टाइम दिखा रहा हूं. पॉज द वीडियो एंड डू 106 इंटू 106 योरसेल्फ.
11236, लेकिन शॉर्टकट मेथड में पीछे 0606 है, मतलब 6 इज द मैजिक नंबर, तो 1 डबल स्क्वायर, इतना याद रखना है। 1 6 का डबल 12, 6 का स्क्वायर 36, 11236। प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। देयरफॉर 108 इंटू 108 इज 1, 8 का डबल 16 और 8 का स्क्वायर 64, और फिर मल्टीप्लाइड विथ 8, यू विल गेट द फाइनल आंसर। नाइन 3312। तो गोइंग बैक टू द सम, HDFC बैंक में 8% के हिसाब से 2 साल के लिए 80,000 रुपये रखे तो 2 साल बाद कितना अमाउंट मिलेगा? 93312। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 93312 माइनस 80,000, 13,312 रुपीज मिला एक्स्ट्रा 2 साल बाद। सम ओवर। थर्ड सम तुम्हें खुद ट्राई करना है बाय पॉजिंग द वीडियो, फिर कंपेयर करना है कि तुम्हारा राइट पड़ा के रॉन्ग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी ऑनेस्ट एंड डू इट एज आई टेल यू, वरना बड़ा पछताओगे। डोंट कॉपी the question. Radha puts a FD of rupees 1 lakh at 7% for 2 years. Find the amount and compound interest. जो हमेशा करते ही हैं हम। Pause the video and try yourself. अच्छा, बाय द वे सॉरी, दिस इज एनुअल कंपाउंडिंग। जब कुछ भी नहीं लिखा है वो एनुअल ही होता है। दुनिया में 99% जगह पे एनुअल चलता है, सो इट इज एनुअल ओनली। LCM, very important. Square जीरो 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 107 इंटू 107, 1, 7 का डबल, 7 का स्क्वायर, क्रेजी स्पीड, 114490। इट्स वेरी बेनिफिशियल टू लर्न द शॉर्टकट 114490। कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट है 114490, प्रिंसिपल था 1 लाख, तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला 14,490। I hope you got it right, and if you were cheating and just looking at the video, then shame on you. You are not fit to be born as a human being. You should be a chimpanzee and eat grass. फोर्थ और फिफ्थ सम में थोड़ा सा मैं लेवल अप करूंगा। फोर्थ सम में हम अमाउंट थोड़ा सा डिफिकल्ट रखेंगे। अमाउंट मतलब प्रिंसिपल अमाउंट। सो FD इज प्लेस्ड फॉर रुपीज
58,500 for 2 years at the rate of 5%. Find amount and compound interest. Okay, without wasting time, you start your sum, I start mine. Let's see who wins. 105 into 105 is 1, 5 का डबल, 5 का स्क्वायर. अपॉन 100 सीधा डेसिमल रख देने का 64496.25. दैट्स योर अमाउंट. 58,500 2 साल बाद 64496.25 बन गया. देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 64496.25 माइनस 58,500. था ना डिफिकल्ट इसलिए था बिकॉज द अमाउंट वॉज स्लाइटली क्रेजी. 1 लाख 2 लाख 20,000 10,000 तो इजी होता है सम. बट अगर अमाउंट खराब है तो बी प्रिपेयर्ड फॉर सम टफ कैलकुलेशंस. दैट्स ऑल. अमाउंट खराब किया, सम टफ हो गया. अब मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट खराब करूंगा. 5th सम में रेट ऑफ इंटरेस्ट खराब करूंगा. फिर भी देखो सम कैसे टफ हो जाएगा. अमाउंट इजी रखेंगे. प्रिंसिपल ऑफ 1 लाख kept at annual compounding at State Bank of India at 9% per year for 3 years. अमाउंट इजी है बट 2 साल का 3 साल हो गया. अब क्या होगा देखो. प्रिंसिपल एक लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%.
number of years 3 years. Amount is equal to principal 1 plus rate of interest upon 100 raised to n मतलब 3. LCM 109 अपॉन 100 होगा और 109 अपॉन 100 का स्क्वायर नहीं क्यूब होगा इस बार. अब इफ यू डू नॉट लर्न शॉर्टकट तो ये करना पड़ेगा. देखो सिनेरियो 1 नो शॉर्टकट तो 109 इंटू 109 9 9 जा 81 8 9 1 जा 9 0 0 तो दो और तीसरा वापस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11881 इंटू 109. वन 295,029. सेकेंड ऑप्शन तुमको 109 इंटू 109 का शॉर्टकट आता है. 9 का डबल 9 का स्क्वायर तो भी ये तो करना पड़ेगा तीसरी बार. सेम है. थर्ड सबसे इजी चीज लर्न द शॉर्टकट ऑफ क्यूब. और मैं तुमको नया शॉर्टकट सिखा रहा हूं. क्यूब का शॉर्टकट मतलब 109 इंटू 109 इंटू 109 कैसे करते हैं. 9 को पकड़ो एंड यूज दिस फॉर्मूला. द शॉर्टकट इज 1 into 3 square into 3 क्यूब. स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगता है, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत टाइम बचेगा और मिस्टेक नहीं होगी. 1 इंटू 3 मतलब 9 इंटू 3. स्क्वायर इंटू 3 मतलब 9 स्क्वायर इंटू 3 और 9 क्यूब. 1 9 3 जा 27. 9 स्क्वायर 81. 81 3 जा 243. नहीं 81 3 जा हाँ 243. बट 2 यहाँ आएगा, 2 ही जन की जगह होती है तो बॉक्स के नीचे 2 डिजिट, बॉक्स के नीचे 2 डिजिट. 3 डिजिट है तो उसको इसके नीचे लिखो. एंड 9 क्यूब 81. 81 43 27 प्लस 2 29 1294,381. स्क्वायर स्क्वायर into 3 square into 3 and cube 81 3
मिस्टेक, 9 क्यूब 81 थोड़ी होता है। 9 क्यूब is 9 9 जा 81, 81 9 जा 729, 729। तो 29, 43 प्लस 7 50, 27 प्लस 2 29, 1 129 5029। तो कॉर्नर में लिखो शॉर्टकट फॉर क्यूब, 102 का क्यूब इज 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 क्यूब। और यहाँ पे 102 मतलब 2 है, मैजिक नंबर। सो 2 3 जा 2 स्क्वायर 3 जा और 2 क्यूब 1, 2 3 जा 6, 2 डिजिट कंपल्सरी, 2 2 जा 4 3 जा 12 एंड 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 डिजिट कंपल्सरी 1061208। तुम्हारे सामने कैलकुलेटर खोल के 102 मल्टीप्लाइड बाय 102 मल्टीप्लाइड बाय 102, 1061208। फिर से एक बार शॉर्टकट 104 का क्यूब मतलब 4 इज द मैजिक नंबर, 1 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब, मैजिक नंबर है 4 4 4 1 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 3 जा 16, 3 जा 58, yeah 48 and 4 cube 64, 1124864, 104 into 104 into 104, 1124864। एक लास्ट टाइम दिखा रहा हूं, 107 क्यूब 1 into number into 3, number square into 3 and number cube। 1 के बाद 2 डिजिट कंपलसरी भरनी पड़ती है हर एक में, सिर्फ 2। तो 1 7 3 जा 21, 7 7 जा 49, 49 3 जा 147, तो फिर 1 ओवरलैप हो जाएगा। एंड 7 क्यूब 343, तो 3 इधर और 43 इधर, इसको ऐड करना पड़ेगा। 43 एज इट इज, 47 प्लस 3 50, 21 प्लस 1 22 एंड 1 1225043, 107 107 सॉरी 107 इंटू 107 इंटू 107, 1125043। दैट्स द शॉर्टकट। तो शॉर्टकट की प्रैक्टिस अलग से करो। कॉपी दिस नीटली। शॉर्टकट स्क्वायर 10x whole square is 1 double square, and shortcut for cube और 1 डबल स्क्वायर के नीचे लिखो 1, डबल मतलब 2x और स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। वैसे
10x का क्यूब करना है तो 3 इंटू एक्स, 3 इंटू एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, मतलब 1 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब। तुमको जैसे याद रखना है रखो, प्रैक्टिस करोगे तो ही शॉर्टकट आएगा। बट बिलीव मी, शॉर्टकट इज अ बिग ब्लेसिंग। इफ यू यूज इट, इट्स गुड फॉर यू। एक लास्ट बार दिखाता हूं। 1 1 1 स्क्वायर, तो मैजिक नंबर है लास्ट 2 डिजिट्स 11 है, तो 11 का डबल 11 का स्क्वायर, लेकिन 11 का स्क्वायर 3 डिजिट है तो 121 ऐसे होगा, और फिर ऐड करने का 21 22 प्लस 1 23 एंड 1 1 2 3 2 1, खुद चेक कर लो। 111 का क्यूब मतलब मैजिक नंबर 11, 11 इंटू 3 33, 11 स्क्वायर इंटू 3 363 एंड 11 क्यूब 1331। बट तुम्हें ओवरलैपिंग लिखना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ 2 डिजिट अलाउड है, तो 363 में 3 आगे और 63 पीछे, और 1331 में 1331। दिस विल रिक्वायर सम प्रैक्टिस। वन 1367631, मुझे भी नहीं पता, चेक करते हैं। 111 इंटू 111 इंटू 111, 1367631। बधाई हो, सीखो, वरना पछताओगे। क्यों पछताओगे? बिकॉज 111 इंटू 111, 1 1 जा 1 1 जा 1 0 1 1 जा 1 1 जा 1 0 1 1 जा 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 into 1 1 1 1 2 3 2 1 0 1 2 3 2 1 0 0 1 2 3 2 1 0 1 3 6 7 6 3 1। क्या आया आंसर? सेम आया, बट वेरी 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 हाई चांस ऑफ मेकिंग सिली मिस्टेक। एक नंबर इधर से उधर तुम्हारा जिंदगी में आंसर नहीं आए। ट्राई नॉट टू मल्टीप्लाई, ट्राई यूजिंग शॉर्टकट। वी आर गोइंग बैक टू सम, कहाँ गए? सम 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 सम, फोर्थ सम। फोर्थ तो हो गया था ना? ये रहा फिफ्थ सम। 1,09,% 3 साल, 109 109 109 129 5029। 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1। 109 109 109 is 1295029 upon 10, 129,502.9। फिनिश योर सम, और उसमें 1,00,000 माइनस कर दो तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा 129,502.9 माइनस 1,00,000, 29,502.9 rupees is the compound interest earned। तो हमने टाइप ए किया है। टाइप ए के मैं
10-15 सम होमवर्क में दूंगा. दैट इज़ इट. रेस्ट वी विल कंटिन्यू आफ्टर दिवाली वेकेशन. यू डोंट हैव टू डू प्रैक्टिस बुक होमवर्क. सिर्फ ये एक वर्कशीट करो. इट इज़ मोर देन इनफ. वी विल कंटिन्यू आफ्टर दिवाली वेकेशन. थैंक यू. बाय.